Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good afternoon, actually. Hi, Hi, Ankita. How are you? I'm good, thank you. Good, good. So, you wanted to do the mirror work or you wanted to do the magic book also? If I talk about Magic Book, in which section you guys are? Like on which day you people are? Actually, we are on the last day today. Last day. Yeah, universe and you. So, almost done with magic book. Okay, so no issues. I will do it with Ani again. Like I have done it before also. So Okay. I would want to do the mirror work. I think that would be good for me. Okay, perfect, perfect. So, yeah, we are continuing the mirror work. We will Sure. still decide where when we start the magic book again. So mostly Oh, we will continue with the mirror work right now. Yes. all right, all right, all right. Yeah. So Ankita, timings right now are because I'm in the central time zone. I live in US, but I come here to my cousin's place right now. So until 13th, the timings will be 3:30 p.m. India time, and then again we are getting back to our routine, which will be 2:30 p.m. India time. So we will like from 14th we are continuing 2:30 p.m. IST. Is it okay for you? Most probably we are right now, because we won't be doing a magic book for 3-4 days. It will be like around 40-45 minute session only. Okay. Yes. All right, then let's start our peak state programming, and welcome Ankita. Thank you so much for joining in today. Okay, so you must be knowing about the peak state programming, right? Sorry. Those who joined today only, do you all know about the peak state programming? क्या आपको पता है peak state programming क्या होता है? Yeah, the one that Sir makes us do, na Rajan Sir, wherein you're Yes, standing in a yes, running yes. position and You everything is got fine. it. You got it. Mansi, Parisha, are you familiar with the peak state programming? I can explain if not familiar, otherwise we can just move on. Okay. So मानसी, पीक स्टेट प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं सो दैट इट अलर्ट्स अवर माइंड ऑल्सो. तो क्या करते हैं कि लाइक हम ऐसे ही रनिंग पोजीशन लेते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम मैराथन दौड़ रहे हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हम उसमें जीत भी गए हैं. तो ये प्रिटेंड इससे क्या होता है कि माइंड तुरंत हमें गामा फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है. तो गामा, जैसे ही हम गामा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो ये हाईएस्ट अलर्ट मोड में हम आ जाते हैं. तो इसीलिए ये सेशंस वगैरह में हमारा अलर्टनेस चाहिए, हम पूरे ओपन एंड रिसेप्टिव होने चाहिए, इसलिए हम ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं बिफोर स्टार्टिंग. तो उसमें क्या करना है, बस आपको वो रनिंग पोजीशन में खड़ा होना है और भागने की एक्टिंग करनी है, हालांकि हम भाग नहीं रहे. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. Think and feel that you are running in And I will send this peak state programming so you can hear also कि exactly क्या है उसमें, जिसमें राजन सर बताते हैं. So let's start. Okay, let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast, You fast, just fast. take a running Yes, position like come on, this faster, and faster, just faster, 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 move faster. your hands Yes, faster fast, and fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, Yes, very nice, I'm very the nice. winner. And you say to yourself, I am the winner. We all are I'm the the winner. winners. I am the winner.
Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right Turn on your leg videos, with the everyone. ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, Thank run, you. run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, Yes, stop, stop, stop. yes, Thank you, I'm thank the you. winner. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, we all are the winners. We say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I I can, will. I, I must. will, I must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Thank you so much. ओके सो अब तक मिरर वर्क में हमने डे 10 तक किया था और जैसे इंडिया का भी 2:30 3:30 अभी 3:30 बजे है तो जो भी डेज मैं यहाँ पे मैं गाइड करती हूँ वो डे आपके लिए कल का होगा यानी अगर आज हम डे 11 ले रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कल करोगे ठीक है तो जैसे डे 10 तक मैं थोड़ा सा रिव्यू भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमने मिरर वर्क में किया इनिशियली 2 दिन हम थोड़े फेमिलियराइज हुए मिरर के साथ फिर हमने थर्ड डे पे हम जो नेगेटिव सेल्फ स्टोरी बनाते हैं अपने आप को वो हमने ढूंढी उसको हमने रिलीज किया फोर्थ डे पे हमारे जो 4 दुश्मन होते हैं लाइक ये जो आलोचना है फियर है एंगर है रिसेंटमेंट आई मीन एंगर मीन्स रिसेंटमेंट और गिल्ट तो ये जो चारों हमारे जो दुश्मन होते हैं क्रिटिसिज्म फियर रिसेंटमेंट एंड गिल्ट तो ये चारों को हमने फोर्थ डे पे रिलीज किया फिर फिफ्थ डे पे हमने लेट मी सी एक्चुअली वीक 1 हाँ फिफ्थ डे पे हमने जैसे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए हमने उस पे काम किया फिर सिक्स्थ डे पे लेट मी सी ये मैं समराइज कर देती हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा तो जितना भी ये लुइस है ने बनाया हुआ है मिरर वर्क का ये पूरा साइंटिफिकली उन्होंने डिजाइन किया हुआ है एंड शी हैज पुट इन सो मच आई मीन ये किसी इंसान का काम होता भी नहीं है लेट मी टेल यू द ट्रूथ कि इसके पीछे डिवाइन गाइडेंस होता है और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो ये था डे 4 उसमें हमने पूरे क्रिटिसिज्म वो सब चीजों को रिलीज किया डे 5 पे हमने अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड किया तो उसमें हम आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ का बार बार वो रिपीट करते हैं वो सेंटेंस मिरर के सामने एंड डे 6 हमारा जो था वो था हाँ रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक तो हम अपने आप को जो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं अंदर तो धीरे धीरे जो ऑटो पायलट पे चल रहा है जो हमें वैसे नहीं पता था तो उसको भी हम अब कैच करने लगे जितना हम मिरर वर्क करते जाते हैं इतना ही ये सब चीजें हमारे लिए आसान होती जाती है हम अभी देख पाते हैं कि हाँ हमने अपने आप को बहुत ही जज किया है अपने खुद को हमने बहुत क्रिटिसाइज किया है तो ये दिस इज ऑल अबाउट रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक एंड देन 7th डे होता है वो रिवीजन का होता है फिर जो डे 8 एंड डे 9 था वो हमें इनर चाइल्ड जो हमारे अंदर का एक जो छोटा सा बच्चा है जो मर गया है इतने सालों से उसको हम वापस लाते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं मिरर के सामने कि यू आर सेफ मैं तेरे साथ हूँ
तो ये पूरा 2 दिन की यही होता है मेरा वर्क, लविंग योर इनर चाइल्ड। और उसके बाद हमने जो डे 10 किया वो था आई लव माई अमेजिंग बॉडी। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ आवर डेज अंटिल टुडे। तो जैसे ये डे 10 में कल, आज की आप लोगों का डे 10 आज होगा, तो ये लविंग योर बॉडी एंड हीलिंग योर पेन। सो अंकिता विल एड यू इन द ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं सारे असाइनमेंट्स भेजती हूँ। तो ओके, आप डे 10 का असाइनमेंट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और उसके पहले के सारा जो असाइनमेंट्स है वो मेरे को मिल जाएगा उसमें? हाँ हाँ, पहले के असाइनमेंट्स चलो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको सारे असाइनमेंट आपके पर्सनल पे करती हूँ। हाँ जी, हाँ और जी। हाँ, If you want आज का Telegram का भी असाइनमेंट कोई ग्रुप है, तो if you want me to send me on that, you can do it that as well. I'm okay either ways. Telegram, WhatsApp कुछ भी चलेगा। ठीक हाँ है? हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ही अभी तो भेजूंगी। हाँ जी, हाँ जी। Okay, all right, all right. हाँ, ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट डे 11, फीलिंग गुड, रिलीजिंग योर एंगर। तो आज का पूरा दिन इसी के बारे में है कि आपके अंदर जो भी गुस्सा भरा हुआ है, हम जितना अपने एंगर को सप्रेस करते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। बिकॉज एवरी इमोशन, एवरी नेगेटिव इमोशन, वॉट एवर वी हैव इट इनसाइड, इट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इमोशंस अंदर रखते हैं उसको वो सप्रेस होता जाता है, और फिर बाद में जब भी वो उस आउट लिमिट सप्रेस होता जाता है, कभी ना कभी वो बाहर आता है। मानी मतलब ऐसा नहीं कि हम लैश आउट होते हैं, वो तो होता ही है, बट एंगर अपने आप को रिलीज करने के लिए या तो कोई डिजीज में कन्वर्ट करता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये बहुत डीप होता है, धीरे 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 समझ में आएगा, एक्सपीरियंशियल जब आप करते हो तो आपको ये सब चीजें ज्यादा पता चलती है। तो एनीवेज, आज आप जब ये एंगर को रिलीज करेंगे आपको खुद को बहुत ही लाइट फील होगा। तो हमने आगे एक बार भी मिरर वर्क किया है, जैसे हम ये सेशंस में, तो उस टाइम पे मैंने सबको बताया था कि लाइक यू नो यू हैव टू बीट द पिलो। यानी पिलो को बीट करते हुए जो भी एंगर जिस पर्सन के लिए भी है या कोई ऐसी सिचुएशन के लिए है, खुद के लिए भी हो सकता है। कभी कभी हमें खुद पे हमने कोई डिसीजन सही नहीं ढंग का लिया होता, तो हमारे खुद के लिए भी रिसेंटमेंट हमें होता है। तो ये सब आपको पिलो बीट करके बोलते हुए रिलीज करना है। सो लेट्स रीड फर्दर कि हाउ वी आर गोना डू इट। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? एनीबडी? Shall I? Yes, yes, definitely. Thank you for coming up. Yes, Thank you you for can start. giving me the chance. Hmm. Feeling good, releasing your anger. Today, you address anger, how to process it and release it before it makes you sick, and how to allow space inside for more positive emotions. हाँ, तो How does यही एक बात समझनी है कि हम जब तक अपने जैसे कबर्ड के अंदर इतनी सारा अगर हमारा भरा हुआ है, मान लो कपड़े हैं, अगर हम पुराने कपड़े निकालेंगे नहीं तब तक हम नए नहीं डाल सकते, अगर कबर्ड बहुत भरा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर भी फाइल्स की फाइल्स बनी होती है। हमारे अंदर एक सोलर प्लेक्सस के अंदर मैसेंजर्स होते हैं। तो जो भी हमारी बिलीफ्स है, हमारे लिमिटेशंस है, जैसे भी वो बनते जाते हैं, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक फाइल के जैसे स्टैक होता जाता है। तो जैसे मान लो कि कोई हमारा बिलीफ है, तो एक बिलीफ के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी फाइलें बनी होती है। तो जैसे मैसेंजर वो फाइल में डालते ही जाएंगे जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई सामूहिक बिलीफ है कि लाइक 40 के बाद नीज वगैरह कमजोर हो जाते हैं। सो दिस इज अ बिलीफ, इट्स नॉट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो ये आपको धीरे धीरे आपको
अगर ये मतलब ये कलेक्टिव बिलीफ हो गया कि पूरा समाज का ही ऐसा बिलीफ है कि 40 के बाद नीज कमजोर हो जाते हैं, पूरी बॉडी कमजोर होने लगती है, उसका डाइजेशन कम होने लगता है, ये जो भी है, तो ये कोई ट्रूथ नहीं है। क्योंकि हम अगर रिसर्च हमने देखा है कि जापानीज लोग 100 इयर्स तक भी इतना अच्छे से जीते हैं, अगर वो कुछ कुछ ये सब चीजें फॉलो करते हैं। तो उसके ऊपर पूरी इकिगाई बुक लिखी गई है, उसको ब्लू जोन्स बोलते हैं। ब्लू जोन्स पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे लोग 100 तक भी इतने ही एक्टिव एंड इतने ही हेल्दी होते हैं। तो ये जो बिलीफ है हमारा कि 40 के बाद ये होता है, that is not the truth, because other people can do it, then we also can do it. तो अभी इसका क्या हुआ कि ये जो एक बिलीफ बनी थी, बचपन में ही कभी हमने सुना होगा, या जहाँ जो भी टीनेज में सुना, जब भी हमने सुना, उसकी एक फाइल बनती गई। अभी ये फाइल मोटी 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 होती गई। अभी ये बिलीफ इतनी, अगर मान लो कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ कि हम 40 के बाद हमें अचानक से थोड़ा कमजोरी फील होने लगी या जो भी है, तो ये एक्सपीरियंस में भी आ गया, तो ये फाइल और मोटी होती जाएगी, मतलब उसकी ये जो बिलीफ सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो उसी तरह से बहुत कुछ भरा होता है हमारे माइंड के अंदर। वो एंगर भी हो सकता है, फियर भी है, बहुत कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी उसके अंदर नया नहीं बिठा सकते, कोई भी नई चीज हम नहीं बिठा पाते। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू फर्स्ट रिलीज ऑल दीज इमोशंस। बट ये डायरेक्टली हम करने भी जाते हैं तो कभी कभी हमें इतना डीपली समझ में नहीं आता, इसलिए हम अगर मैजिक बुक से आए होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि मैजिक बुक ने हमने देख लिया कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड का पावर, पॉजिटिविटी का पावर है, एफर्मेशंस हम करते हैं, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा थोड़ा ये पाथ पे लेके आती है। और फिर जब हम ये रिलीज करते हैं तो वी कैन मेक आवर न्यू बिलीव्स which are very positive, and we fill it with all the positive affirmations, like I am powerful, I can do anything, I can be anything, do anything, or have anything that I want in my life. So ये नई हम लोग बनाते हैं through our mirror work. So yes, let's read. This was just a little bit of explanation. Yeah, so let's. How does it feel to be talking to yourself every day and telling yourself that you are loved? Look in your mirror and take a few moments to congratulate yourself. You have looked deep into your emotions and started to release the past. You're now learning to play a positive tape of affirmations in your mind. Celebrate the progress you have made so far. I celebrate you and your commitment to your mirror work. हाँ, तो ये मिरर वर्क के लिए कमिटमेंट जैसा चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा अनप्लेजेंट हो सकता है। क्योंकि जैसे ही हम मिरर के सामने जाते हैं, मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब मैंने इनिशियली मिरर वर्क किया था, तो यानी स्पेशली जब इनर चाइल्ड वाला कर रही थी, ओ माय गॉड, आई क्राइड होल डे। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, अनप्लेजेंट लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट यू हैव टू स्टिक विथ इट। तो ये कमिटमेंट चाहिए होता है, जो जर्नलिंग का कमिटमेंट या फिर मिरर वर्क का कमिटमेंट, जो भी एफर्मेशन है हमें बार बार रिपीट करने हैं, ये कमिटमेंट। तो of course we have to celebrate our progress, whatever we have made so far. So definitely celebrate all of you, whatever you have done until now. Let's read further. While you were digging into your past and releasing your emotions, you may have discovered some angry feelings aimed at yourself or a particular event. So today, I would like to help you work on forgiving and releasing any anger you might have so that you can feel good about yourself. Anger is an honest emotion, but when it is not expressed or processed outwardly, it will be processed inwardly in the body and usually develops into disease or dysfunction of some sort. Yes, तो आज हम पूरा अपना एंगर रिलीज करेंगे
और उस जो लोग के तरफ हमें एंगर है उनको भी फॉरगिव, इनको भी माफ करेंगे. So yeah, let's read further. We generally get angry about the same things over and over again. When we are angry, we feel we don't have a right to express it. So we swallow it, which can cause resentment, bitterness, or depression. So it is good to handle our anger and release it whenever it comes up. Yes, so If you रिलीज करना बहुत जरूरी है. जैसे मैं अपनी अगर बात बताऊं तो अभी मुझे अगर किसी पे एंगर आता भी है तो उसी टाइम पे मैं पिलो बीटिंग करके जो भी मुझे बोलना है वो बोल के फिर मैं उसको रिलीज कर देती हूँ. ये बड़ा अजीब लगता है कि यानी आप किसी के लिए आपके अंदर एंगर है, वो ही हमको एक इनिशियली हमें लगता है कि क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारे अंदर ये पर्सन के बारे में इतना एंगर है. बट प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो इमोशन है अगर आपने उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, कहीं ना कहीं पे ये अंडरस्टैक होता जा रहा है, अंदर उसकी बड़ी बड़ी फाइलें बनती जा रही है. तो जितना रिलीज करोगे, हाँ, एंगर रिलीज करने के बाद वो पर्सन के लिए आप ब्लेसिंग्स भेज सकते हो, मैजिक डस्ट कर सकते हो, वो पर्सन को माफ करके आगे बढ़ना है हमें. तो ये जो भी है, बट बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू फर्स्ट रिलीज अवर एंगर वट एवर इट इज देयर. तो जैसे कभी कभी हमें, अभी आप जब करने जाओगे ये प्रैक्टिस, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई एंगर है नहीं किसी के बारे में. बट मिरर में जाना, पूछना बार बार, आपको कुछ ना कुछ याद आता जाएगा. इतने सारे लोग होंगे जिनके खिलाफ अंदर एंगर भरा होगा. अगर आप ऐसे टाइप के पर्सन देखना, आप ये ऑब्जर्व भी करेंगे, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, जो कुछ भी अंदर होता है बोल देते हैं सामने, वो लोग बहुत ही हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ होता है. और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते सामने में भी, बचपन में पेरेंट्स ने सप्रेस कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे रोते नहीं है. कभी कभी रो के भी हम अपना जो भी इमोशन होता है वो रिलीज करते हैं, पर मे बी पेरेंट्स ने कलेक्टिवली सोसाइटी ने बोल दिया कि नहीं, ऐसे रोंदू बच्चे हो, क्यों रोते हो, या मेन होके भी रोते हो, अरे नहीं रोना चाहिए. तो ये सब क्या है, एक सप्रेशन होता है. फिर हम सीख जाते हैं कि नहीं, अगर हमारा कोई इमोशन आता है तो हमें सप्रेस करना है, हमें उसको रिलीज यानी उसको एक्सप्रेस नहीं करना है. हम धीरे 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 एज ए चाइल्ड ऐसा सीख जाते हैं. फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमने बहुत ही उसको ये चीज को मास्टर कर लिया होता है कि कोई भी इमोशन आए उसको बाहर एक्सप्रेस मत करो, बस अंदर उसको सप्रेस कर दो. बट दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर फॉर आवर ओवरऑल लाइफ. तो इसीलिए उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है. सो या, लेट्स रीड फर्दर. If you feel like expressing yourself physically, then get some pillows and start hitting them. Don't be afraid to let your anger take its natural course. You have already kept your feelings bottled up too long. There is no need to feel any guilt or shame about feeling angry. हाँ, तो जैसे मैंने बताया, आपको शेम या गिल्ट नहीं फील करना है, बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग ये जो हम रिलीज करते हैं एंगर, अगर किसी के बारे में है, तो क्या होता है उससे, जो पर्सन है जिसके बारे में हमने रिलीज किया, अभी उसको हम बहुत ही एक अच्छी नजर से देखने लगेंगे. जो उनका नाम लेते भी अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है तो वो काफी कम होता जाएगा आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर अ व्हाइल. तो यानी एक बार में भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत एंगर भरा हुआ है और बहुत लोगों के बारे में है, तो आप ये प्रैक्टिस और कंटिन्यू कर सकते हो जब तक कि पूरा एंगर रिलीज ना हो जाए. तो ये आपके ऊपर होता है. बट दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज जनरली we do the just like magic book, we do again and again. We are doing this mirror work again, like even second time this time. So maybe we will continue if everybody agrees to that. But yeah, जितना हम ये करते जाते हैं, जैसे फॉरगिवनेस है, एंगर रिलीज करना, फियर को रिलीज करना, जितना हम करते जाएंगे इतना ही हम लाइटर फील करते जाएंगे.
तो इतना ही हम पीसफुल भी फील करते जाते हैं, लाइटर एकदम, बॉडी में माइंड में बहुत ही लाइट फील होता है। अभी जैसे मुझे इजीली आई 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 कैन नॉट टेक एनी वरीज इजीली, मुझे चिंता आती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे लगता है नहीं, ऊपर वाला बैठा है, सब कुछ हो जाएगा। तो या दैट्स इट, लेट्स रीड फर्दर। One of the best ways to deal with anger is to talk openly to the person you are angry with. When you feel like screaming at someone, then the anger has been building up for a long time. Often, it is because you feel you cannot speak openly to the other person. So, the second best way to let out anger out is to talk to the person in the mirror. Mirror work will help you तो get मिरर all में your आज आपको देख के पूछना है कि तुझे किससे एंगर है, किससे तुझे, किसके खिलाफ तुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, यानी अंदर है, भरा हुआ है। तो जितना आप पूछोगे आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे, और ऐसे सब लोगों के नाम या शकल, जो भी सूरत है, वो आपको याद आती जाएगी। और जैसे ही याद आता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, तो मेरा जो पिलो था, मैंने अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू दिस प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? सो आइसोलेट योरसेल्फ। ऐसा कोई कमरा ले लो जहां पे किसी को सुनाई ना दे आप क्या बोलने वाले हो या क्या करने वाले हो। फिर जैसे मेरा जो मिरर था वो मेरे बाथरूम सामने ही था, तो मैं उस बेडरूम में जाके अपना रिलीज करती थी। तो मिरर में वापस जाना, वापस रिलीज करना, ऐसा मैंने किया था। बट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन हैव द पॉकेट मिरर मे बी in front of you and you can start doing this practice. तो मोस्टली आप कई अलग अलग तरीके से भी रिलीज कर सकते हो एंगर, बट जो मुझे बेस्ट तरीका लगा वो है पिलो को बीट करना। उससे बहुत कुछ रिलीज होता है, जो हमारे अंदर एक एनर्जी भरी हुई होती है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाती है। तो पिलो बीटिंग इज द बेस्ट टू रिलीज एंगर इन माय ओपिनियन। You can use other ways also. So yeah, let's read. mirror work will help you get all your feelings out. One of my students had a difficult time letting her anger out. Intellectually, she understood her feelings, yet she could not express them outwardly. When she allowed herself this expression through her mirror work, she was able to scream and call her mother and her alcoholic daughter all sorts of names. She felt a tremendous weight lift from her when she released her resentment. Later, when her daughter came to visit, the woman could not stop hugging her. All this was possible because she had released her repressed anger, making room for love. हाँ, तो ये जो भी रिप्रेस्ड एंगर होता है, मैंने खुद देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर आपके अंदर किसी के बारे में एंगर है कुछ भी, तो आप वो पर्सन को पूरी तरह से प्यार कर ही नहीं पाते हो। एंड दिस होल जर्नी इज अबाउट अवर एंड अवर सेल्व्स ओनली, बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी अंदर होता है वही रिफ्लेक्शन होता है बाहर, यानी मिरर, एग्जैक्ट मिरर रिफ्लेक्शन होता है बाहर की दुनिया, आपके अंदर के इमोशन या आपके अंदर के थॉट्स, आपके अंदर के फीलिंग्स, खास करके फीलिंग्स। तो जो अंदर होता है वही बाहर उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी तरह से जैसे ही आप ये रिलीज करते हो, तो वो पर्सन के बारे में आप और अच्छा सोच पाते हो, और अच्छे से। अगर धीरे धीरे करके किसी के बारे में ज्यादा एंगर है, तो जितना आप रिलीज करते जाओगे, इतना ही आप वो पर्सन को प्यार करते जाओगे, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर आपका कोई करीबी पर्सन है, अगर मे बी कोई दूर का है जो अभी आपके साथ इतना कांटेक्ट में नहीं है, तो भी इसके उनके बारे में भी आप ये चेक भी कर सकते हो कि अगर वो नाम लिया तो क्या मुझे कोई फीलिंग्स आ रही है, कोई अनकंफर्टेबिलिटी, नेगेटिव इमोशन कुछ बाहर आ रहा है। ये आपको बार बार पूछना है और टेस्ट करना है कि हाँ, आपने उसको पूरी तरह से रिलीज किया है कि नहीं। तो that's how you do it. So let's read further. Alekia, can I ask something? Yes, Babita ji, definitely. सपोज घर में अगर जैसे कभी बच्चों पे गुस्सा आया या कभी कोई हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आया, तो तभी क्या करना चाहिए? अपने रूम में जाके और अपने पिलो में ऐसे बीट करना चाहिए? मतलब वो Yes. कभी गुस्सा आता है तो मुंह से कुछ ना कुछ तो फिर नेगेटिविटी निकलता ही है, एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। तो उस समय क्या, मतलब अपने रूम में फटाफट जाके और
पिलो बीटिंग कैसे करते हैं? पिलो को लेके ऐसे ऐसे जोर जोर से बीट करते हैं क्या? हाँ, जोर जोर से, जैसे अपने जैसे अंदर पूरे अपनी पूरी टेक दिस एनर्जी क्वेश्चन है। हाँ और इसको बस ऐसे ऐसे करने का क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। ओके यानी मैंने जब किया तो बहुत जोर जोर से मैंने पिलो को मारा था। तो ओके ओके यस, और जैसे यानी आपको बोलते भी जाना है कि तूने ऐसा बोला, मुझे तूने ऐसे किया, जो भी आपके अंदर है बोलते हुए रिलीज करना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। यानी यहाँ पे भी देखो, इन्होंने बोला ना कि एक उनकी जो स्टूडेंट थी, तो वो स्टूडेंट ने जैसे ही ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम लेके अपनी मम्मी को और अपनी डॉटर दोनों जो अल्कोहलिक थे उनके बारे में, यस उनको जो भी रिसेंटमेंट थी, जोर से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने निकाला। चिल्लाने से भी हमारा एक तरह का एक्सप्रेशन होता है अंदर के इमोशंस, तो अंदर भरने से तो बहुत ही अच्छा होगा कि हम उसको कंप्लीटली रिलीज कर दें। तो यस, अभी जब भी आपको कुछ गुस्सा आता है बच्चों के बारे में, मैंने ये अपनी बेटी के बारे में किया था, मैंने आप सबसे शेयर भी किया था लास्ट टाइम, आई डोंट नो यू वर देयर और नॉट। तो जैसे मैं आ रही थी कार में और मुझे एक वो एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने पूरा शेयर किया था। तो मैंने आके तुरंत ही पिलो बीटिंग करके वो पूरा रिलीज कर दिया, और जैसे ही मैंने रिलीज किया पूरा, उसका भी जो मेरी बेटी का जो मेरी तरफ जो भी था वो पूरी तरह से बदल गया था, और आई वॉज एबल टू लव हर मोर, आई हग्ड हर, शी हग्ड मी। तो यानी ये तो हम लोग को कहना क्या चाहिए व्हेन वी आर बीटिंग द पिलो? व्हाट वी हैव टू से? जो भी आपके जिस वो अंदर से अपने आप आएगा एक्चुअली, कि तू मतलब जो हमेशा तू। बात हुई है ये पूछना है कि मुझे इस पे गुस्सा क्यों आया, ऐसे बोल के बीट करना है मुझे ऐसा गुस्सा क्यों आया? नहीं देखो, जैसे अपने मैं अपनी अपनी बेटी के बारे में उस दिन मुझे जो गुस्सा था बहुत टाइम से भरा हुआ होगा ना, इसीलिए उस दिन इस तरह से आया था। तो तुरंत मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मेरे अंदर ही जो है जो भी मतलब कोई भी रिप्रेस्ड एंगर होगा या जो भी है, उसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन आई है। उस टाइम पे जो सिचुएशन आई थी, मुझे जैसे एकदम टॉर्चरिंग टाइप ऑफ सिचुएशन आती थी कभी कभी पहले, जब वो बहुत उसके टेंट्रम्स होते थे। तो पर मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं पे मेरे ही रिप्रेस्ड इमोशंस थे, जिसकी वजह से बाहर भी इस तरह से वो आता है। तो जब भी कुछ आता है तो बस ये पिलो बीट करके, जैसे मैंने उस टाइम पे अगर बोला होगा तो मैंने क्या बोला कि तू हमेशा ऐसे करती है, मुझे इतने टेंट्रम फेंकती है, ऐसा बोलती गई और ऐसे पिलो को बीट करती गई। ओके ओके हाँ, तो जो भी आपके मन में आता है उस टाइम पे, ओके तो रिप्रेस्ड एंगर इज मच मोर डेंजरस, तो रिलीजिंग इट विल मेक यू फील सो लाइटर, सो लाइटर। तो थैंक आपको यू। गिल्टी भी फील नहीं करनी है कि यार मैं इतनी बुरी माँ हूं कि अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचती हूँ, बट कहीं ना कहीं पे अंदर तो है ना भरा हुआ, इसीलिए तो बाहर आ रहा है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो भी रहा है आउटर वर्ल्ड में, कोई पर्सन ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, या मे बी फैमिली पर्सन के साथ ही ऐसी हीटेड सिचुएशन हो गई, तो कहीं ना कहीं पे समझ लेना कि बाहर कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ इमोशंस आपके अंदर ही है जो इस तरह से बाहर एक्सप्रेस हो रहे हैं। जैसे ही हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर, तो हम इजीली इसको रिलीज कर पाएंगे। अब अभी अभी क्या होता है, अब अगर अभी ये मिरर वर्क करने से पहले की बात करें, तो हम उसको होल्ड ऑन टू करते हैं कि नहीं, ये पर्सन ही बुरा है, उसने ही हमारे साथ ऐसा किया। बट अभी आप किस तरह से सोच रहे हो कि आपके अंदर कुछ है जिस वजह से ये बाहर इस तरह से हो रहा है। यानी मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल ब्लेम करना छोड़ दिया, राइट। जिससे मैं पहले उसको ब्लेम करती हूँ कि ये हमेशा ऐसे जिद करती है, किसी चीज को लेके हमेशा बैठ जाती है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का होल्ड ऑन टू ब्लेमिंग अदर पीपल। बट जैसे ही मैंने उसको समझ लिया कि नहीं, ये कुछ यूनिवर्स मुझे सिखाना चाह रहा है, अगर ये सिचुएशन वापस आई है इतने सालों के बाद, तो ये अगर सिचुएशन आई है, दिस इज टू मेक मी लर्न फ्रॉम इट। तो जैसे ही मैंने अपने अंदर अपनी जिम्मेदारी ले ली, मेरा मन भी शांत हो गया। फिर मैं, यानी उस टाइम पे मैं ड्राइव कर रही थी, फिर मैं घर पे आके मेरे बेडरूम में जाके बंद करके मैंने पूरा एंगर रिलीज किया।
और it hardly took me 5 to 10 minutes. मोस्टली 1% के बारे में तो आपको 5 मिनट ही लगेगा. अगर रोना आ रहा है तो रो लो उस टाइम पे. जो भी इमोशंस बाहर आ रहे हैं उसको बाहर निकालना है. एंड देन फिर जैसे मैंने अपनी बेटी के बारे में किया था, तो मैंने उसके बारे में बहुत ग्रेटिट्यूड भी किया था. उसके बाद आप लिख भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो, जो भी आपको करना है. जितना हो सके उसको फिर प्यार भेजना है. तो दैट्स हाउ वी डू इट. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Okay, so Thank- go within. बबीता जी, इज इट क्लियर? Yes, thank you so much. थैंक यू. So many people tell me how much happier. I think ये पढ़ा है मैंने ना? It's okay, you can read. Sorry? You can continue from here. Go within and know that there is an answer. Okay, yeah. Go within and know that there is an answer to your anger and that you will find it. It is very healing to meditate and visualize the rage flowing freely out of your body. Send love to the person who is the object of your anger and see your love dissolve whatever disharmony there is between you. Be willing to become harmonious. Perhaps the anger you feel is reminding you that you are not communicating well with others. By recognizing this, you can correct it. So let's affirm, it is okay to have my feelings. Today I express how I am feeling in positive ways. हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज होती है कि जैसे आप सबने योगा में सुना होगा कि जैसे हमारे अंदर चक्रास यानी एनर्जी चैनल्स होती है बॉडी के अंदर. तो ये जो एनर्जी चैनल्स होती है उसमें से एक हमारी एनर्जी चैनल यहाँ पे होती है थ्रोट के ऊपर. तो ये क्या होता है कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये चक्रा यहाँ पे ब्लॉक होता है, ये एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, ब्लॉक हो जाती है. तो जैसे ही आप ये एफर्मेशंस भी करते हो कि आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वेज, यानी आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितना ही ओपनली कम्युनिकेट कर पाओगे, इतना ही आप हैप्पी एंड कंटेंट रहने लगोगे. क्योंकि कहीं ना कहीं पे डिसहार्मनी नहीं क्रिएट हो रही है. अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चीजें अंदर 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 भरती जाती है. बट जैसे ही आपने सीख लिया कि नहीं, मेरे अंदर जो है आई वांट टू एक्सप्रेस इट ऑलवेज, सो बिकम हार्मोनियस, बी विलिंग टू बिकम हार्मोनियस. तो वैसे हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो हार्मोनियस ही है. बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस energies blocking inside us, we are not expressing ourselves, और कहीं ना कहीं पे disharmony create होती है बॉडी के अंदर. तो वही डिसहार्मनी बाहर भी दिखने लगती है. तो आज प्लीज बी विलिंग टू बिकम हार्मोनियस एंड बी विलिंग टू रिलीज वॉट एवर इज देयर इन योर इनसाइड ऑफ यू. जिनके भी बारे में, हस्बैंड है, इज मदर इन लॉ है, इवन पेरेंट्स के बारे में भी है, डोंट फील गिल्टी एट ऑल. अंदर रखने से बाहर निकालना बहुत ही लाभदायक, बेनिफिशियल होगा आपके लिए. तो अगर मम्मी पापा के लिए भी कुछ भी है, मान लो बचपन में आपको साइकिल चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिलाई, उस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आया था, तो प्लीज रिलीज इट. ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. मे बी आपके पेरेंट्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव थे, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने या बाहर नहीं जाने देते थे, या कोई रूल्स बना के रखे थे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता था कि यार मुझे तो 7 बजे तक आ जाना ही पड़ता है, हालांकि आपको बहुत पसंद था फ्रेंड्स के साथ घूमना, बाहर जाना. यानी जो भी है, जो भी गुस्सा है आपके अंदर, प्लीज रिलीज इट. अपने पेरेंट्स से भी आप ज्यादा प्यार करने लगोगे जब ये रिलीज कर पाओगे. तो कहीं ना कहीं पे यही आपको रोक के रखता है उनको ज्यादा प्यार करने से, और उनके बारे में ये है ही नहीं. सो किसी को ब्लेम तो यहाँ पे हम कर ही नहीं रहे हैं, बस हमारे अंदर जो है वही हम निकाल रहे हैं. ओके, सो आई थिंक दैट्स क्लियर. सो लेट्स रीड अवर मिरर वर्क एक्सरसाइज, डे 11.
Shall I read it? Yes, yes, Ankita ji. Yes. Your day 11 mirror work exercise. Find a place with a mirror where you will feel safe and will not be disturbed. Look into your eyes in the mirror. If you are still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth or nose. See yourself and or the person you believe has wronged you. Remember the moment when you became angry and let yourself feel the anger come through you. Begin to tell this person exactly what you are so angry about. Express all the anger you feel. Be specific. You could say something like, I'm angry at you because so and so reason. I'm hurt because you did so and so. I'm so afraid of you. I'm so afraid because you did so and so. You may need to do this exercise several times before you truly feel that you have gotten rid of all your anger. You may want to work on one anger issue or several. Do what feels right for you. हाँ, तो मैं अगर अपनी मैं बात करूं, हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी होते हैं मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे लगता था अच्छा चलो हो गया, एंगर रिलीज हो गया, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इतना सारा भरा हुआ होता है कि ये एक बार करने से नहीं होता है, इसलिए जब भी आप कर पाओ तो ये प्रैक्टिस जरूर करना। तो आई एज्यूम कि सबको आज की प्रैक्टिस पता चल गई। तो आपको मिरर के सामने शांति से बैठ जाना है और फिर जहां पे आप डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत जरूरी है कि अगर बीच बीच में डिस्टर्ब होंगे तो आप फिर इतना रिलीज नहीं कर पाओगे। एंड बी स्पेसिफिक, जो भी पर्सन के बारे में आपको बोलना है प्लीज बोल दो। यहाँ पे आपको जरा भी अपने आप को रोकना नहीं है। कभी कभी हम ही अपने आप को रोकते कि नहीं, हाउ कैन यू बी सो बैड, कि इतना इतना सब कुछ बुरा बोलना है, या जो भी बुरा आ रहा है बोल दो। कभी कभी लोग स्क्रीम करके भी रिलीज करते हैं एंगर को, इस तरह से भी आप कर सकते हो कि कार में बैठ जाओ, कार को पूरी तरह से बंद कर लो, जितना चीखना चिल्लाना है वो चिल्ला लो, उससे भी रिलीज होता है एंगर। पर मोस्टली मुझे तो ये पिलो बीटिंग बहुत इफेक्टिव लगता है। जितना हो सके मारो 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 पिलो को पूरा रिलीज करो। और आप 1 पर्सन एट ए टाइम भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया था तो 6-7 लोगों को एक साथ ही मैंने किया था, जो भी याद आ रहा था उस टाइम पे। मिरर ही आपको मोस्टली बताता है। सो या लेट्स रीड आवर जर्नलिंग एक्सरसाइज। The power is within you. Your day 11 journaling exercise. Have you been angry for much of your life? Here are some questions you can journal about to help release these habitual angry feelings. Why am I choosing to be angry all the time? What I'm doing to create situation after situation that angers me? Who am I still punishing? What am I giving out that attracts in others the need to irritate me? Now ask yourself these questions and write down your answers. What do I want? What makes me happy? What can I do to make myself happy? Think about ways you can create a new space inside you to feel good about yourself. Think about ways you can create optimistic and cheerful patterns and beliefs. तो देखो, जितना रिलीज करोगे फिर नया रूम बनेगा, एक स्पेस इनसाइड बनेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल पैटर्न एंड बिलीव्स बनाने हैं। तो जैसे अगर मैं रिलीज करती हूँ अपना एंगर, उसके बाद मुझे कौन सी एक अच्छी नई स्टोरी क्रिएट करनी है अपने बारे में। स्टोरी इन द सेंस के लाइक जो भी पैटर्न मुझे बनानी है, तो दैट आई कैन क्रिएट कि अगर मैं एंग्री पर्सन नहीं हूं तो मैं किस तरह की पर्सन हूं। तो आपको ही सोचना है आपको क्या चाहिए, अपने आप से पूछना है। फर्स्ट तो ये सब क्वेश्चंस पूछो। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप देख पाओगे कि एवरीथिंग इज पॉइंटिंग एट व्हाटएवर इज विद इन यू, बाहर कुछ है ही नहीं। तो आप जब ये क्वेश्चंस पूछते हो कि व्हाई एम आई चूजिंग टू बी एंग्री ऑल द टाइम, क्यों मैं हमेशा गुस्सा होना पसंद करती हूँ, यानी चूज करती हूँ, या व्हाट एम आई डूइंग टू क्रिएट सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन,
ऐसा मैं क्या करती हूँ कि सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं ये बात करूं कि जैसे उस दिन हुआ मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ, अगर वो बार बार वो सिचुएशन होती है तो देन आई नीड टू गो विद इन। मुझे देखना है कि ऐसा तो मैं क्या कर रही हूँ, या क्या है जो अंदर से रिलीज होना बाकी है कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है। हु एम आई स्टिल पनिशिंग, किसको मैं अभी भी सजा दे रही हूँ? क्या मैं अपने आप को सजा देती हूँ या कहीं किसी और को? तो ये जितने भी क्वेश्चन है, आप खुद से जब जर्नलिंग करने बैठोगे कुछ ना कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो ये लेके ही बैठना है जर्नलिंग का जो भी है, मिरर के सामने ही बैठना, मिरर के सामने क्वेश्चंस पूछना, आपको आंसर्स भी मिलेंगे। यानी आंसर मिलेंगे मतलब कुछ न कुछ अंदर से आता जाएगा, तो आपको बस वो लिखते जाना है जो भी आता है। एंड देन थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू स्पेस विद इन यू। तो ये फिर आपको अपने लिए खुद, जैसे अगर मे बी आपको कोई ऐसा पर्सन बनना है जो हमेशा सबको हंसाता है, तो दैट यू कैन फिल इन द स्पेस जो आपने यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया। ओके, सो लेट्स रीड हार्ट थॉट फॉर डे 11। आई डिजर्व टू फील गुड। तो सभी अपने अभी एक्चुअली हमने आगे भी ये भी मिरर के सामने बोलना है। इट्स ओके टू हैव माय फीलिंग्स, टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वेज। तो ये बोलना है मिरर के सामने। It's okay to have my feelings. Today, I express how I am feeling in positive ways. तो ये बोलना है। And then it's okay to feel. I deserve to feel good. तो ये दिल के ऊपर रख के बोलना है, I deserve to feel good. अभी कहीं ना कहीं because all this negative emotions are there within us, which stops us from feeling positive about ourselves also. Good, feeling good is like कहीं ना कहीं पे हम अपने बारे में भी feel good नहीं कर पाते हैं because of all this negativity which is like piled up in a very long time. तो धीरे धीरे रिलीज करेंगे जो भी है। We are on this process, so definitely we are doing great. Okay, so let's read. Life is very simple. Shall I read? Yes, Ankita. Okay. Your heart thought of the day 11. I deserve to feel good. Life is very simple. We create our experiences by our patterns of thoughts and feeling. What we believe about ourselves and about life becomes true for us. Thoughts are only words strung together. They have no meaning whatsoever. It is we who give meaning to them. We give meaning to them by focusing on the negative messages over and over in our minds. What we do with our feeling is very important. Are we going to act them out? Will we punish others? Sadness, loneliness, guilt, anger, and fear are all normal emotions. But when these feelings take over and become predominant, life can be an emotional battlefield. Through mirror work, self-love, and positive affirmations, you can nourish yourself and relieve any of the anxiety you may be feeling at the moment. Do you believe you deserve peace and serenity in your emotional life? So let's affirm, I release the pattern in my consciousness that is creating resistance to my good. I deserve to feel good. हाँ, तो ये भी एक दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, I release the pattern in my consciousness that is creating resistance to my good. I deserve to feel good. तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस जो भी है, सैडनेस, लोनलीनेस, ओके, दीज आर नॉर्मल इमोशंस। ये इमोशंस कब हमें इतना नुकसान पहुंचाते हैं? जब हम उनको अपने माइंड के अंदर घर करने देते हैं। कि मान लो अभी कुछ चीज आई, लोनली फील हुआ या अनकंफर्टेबल, अनईजी अंदर फील हो रहा है,
ओके, तो अभी उसको आप और कोई रीजन भी पता चला कि इसकी उसकी वजह से या इसकी वजह से फील हो रहा है, आप उसको लेके ही बैठ गए, आप यू आर थिंकिंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर, तो फिर क्या होता है कि वो पूरे ये जो फीलिंग्स है आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, एंड देन योर लाइफ विल बी एन इमोशनल बैटलफील्ड। तो इसीलिए ये इमोशंस आना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको रिलीज करके उसको उनको जाने देना, उनको रिलीज करना, ये हमें करना अभी सीखना है। उसको लेके बैठ जाना नहीं है, हमें अपनी लाइफ को सेल्फ लव से, पॉजिटिव एफर्मेशन से इतना नरिश कर देना है कि जो भी है वो सब कुछ रिलीज हो जाए, एंड वी कैन फील पीस विद इन, एक सेरेनिटी होगी हमारी इमोशनल लाइफ में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस आई एम मच मोर काम देन बिफोर। मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है अब, अगर आता है तो मैं रिलीज करती हूँ, बट मोस्टली अभी आता ही नहीं है। हाँ, मेरे इमोशंस आते हैं, जैसे मैं कल की बात करूं तो कुछ आए थे, कुछ ऐसा बाहर हुआ था जिसकी वजह से थोड़े से इमोशंस अंदर भी आए थे, तो मैंने क्या किया, फिर तुरंत ही मैंने लिख दिया। जो भी मेरी ये खुद की प्रैक्टिस है कि मैं अंदर कुछ नहीं रखना चाहती, तो मैं जैसे ही लिख देती हूँ, आई फील सो गुड, एंड देन आई डू द ग्रेटिट्यूड वट एवर आई एम फीलिंग, फिर मैं ग्रेटिट्यूड लिखना भी चालू कर देती हूँ। और या तो अगर मैं लिख नहीं पाऊँ तो मैं ग्रेटिट्यूड सोचना स्टार्ट कर देती हूँ कि लाइक व्हाट एम आई ग्रेटफुल अबाउट। तो दैट्स, यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रक्चर कि कैसे आपको करना है। कुछ भी ऐसा आता है उसको रिलीज करते जाना है, जो भी नेगेटिव आता है, क्योंकि मोस्टली जो नेगेटिव इमोशंस है कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियस में है, तो वो आएंगे बीच बीच में, बट दैट्स फाइन। अगर बाहर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि ये मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। अगर कुछ नेगेटिव मेरे साथ होता है उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेके कि लाइक वाओ दिस हैज कम जस्ट टू रिलीज समथिंग फ्रॉम विद इन, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो ये जो बैड फीलिंग्स अभी आ रहे हैं कुछ ना कुछ अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं, तो तुरंत ही पेन पेपर उठाती हूँ और उसको रिलीज करती हूँ। और उसको तुरंत ही फिर मैं ये भी करती हूँ कि रिलीज करने के बाद मैंने 10 ऐसे अफर्मेशन लिख देती हूँ जो भी अपने बारे में है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप अगर स्पेस क्रिएट करते हो तो प्लीज अंदर अच्छे वाले थॉट्स भी भरते जाओ, अच्छे अफर्मेशन भी उसमें डालते जाओ। तो लेट्स रीड योर हीलिंग लाइट मेडिटेशन। I want to ask something like this meditation की चीजें हम लोग डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, ये लुइस है की वेबसाइट है, hayhouse.com, आई थिंक है So पब्लिकेशन will है be कुछ। getting like you will be providing this thing? या आई मीन एक्चुअली मैंने क्या किया है कि हिंदी में एंड इंग्लिश में मैंने अपने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड किए, ऑडियोज रिकॉर्ड किए हैं जो मैंने यूट्यूब पे अच्छा डाले हुए हैं। हाँ, तो मैं अच्छा वो मैं रोज भेज देती हूँ इस पे। अगर आपको ये लुइस है का चाहिए तो आई थिंक इट शुड बी देयर इन माय फोन। कभी कभी मेरे फोन में से कोई कोई चीजें मैं खाली हो गई तो मुझे पता नहीं है, बट आई विल सी इफ आई हैव इट, आई कैन ऑल्सो सेंड इट टू यू। तो ठीक है लुइस थैंक का है तो वो अमेरिकन एक्सेंट में है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बना दिए थे। ठीक है ठीक है okay so we are हाँ, supposed to read it. यस यस, लुक डीप विद इन। Look deep within the center of your heart and find a tiny pinpoint of brilliantly colored light. It is such a beautiful color. It is the very center of your love and healing energy. Watch the little pinpoint of light begin to pulsate. As it pulsates, it expands until it fills your heart. See this light moving through your body to the top of your head and the tip of your toes and fingers. You're absolutely glowing with this beautiful colored light, with your love and your healing energy. Let your whole body vibrate with this light. Say to yourself, with every breath I take, I'm getting healthier and healthier. Feel this light cleansing your body of disease and allowing vibrant health
to return to it. Then let this light begin to radiate out from you in all directions so that your healing energy touches everyone who needs it. What a privilege it is to share your love and light and healing energy with those who are in need of healing. Let your light move into hospitals and nursing homes and orphanages and into prisons, mental hospitals, and other institutions of despair, bringing hope and enlightenment and peace. Let it move into every home in the city in which you live. Wherever there is pain and suffering, let your love and light and healing energy bring comfort to those in need. Select one place on the planet as a place you would like to help heal. It may be far away or just around the corner. Concentrate your love and light and healing energy on this place and see it come into balance and harmony. See it whole. Take a moment every day to send your love and light and healing energy to the particular place you have chosen. What we give out comes back to us multiplied. Give your love and so it is. यानी कितना जबरदस्त है ये मेडिटेशन के आप अपने अंदर को पहले प्यार से भर रहे हो और वही प्यार आप सभी लोगों को जहाँ पे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है वहां पे अपना प्यार ये भेज रहे हो और जो भी आप भेजते हो वो वापस आपके पास मल्टीप्लाइड आता है यानी हम जितना भी हम देते हैं वही सर्कुलेट हमारी लाइफ में वापस होता है जिससे आज मैं एक चीज आज ऐसे सोच रही थी कि मैंने रिसेंटली कुछ ऐसा किया था जो बहुत ही वंडरफुल एक्ट था मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो बट फिर मैं एनालाइज कर रही थी तो उसके सामने मुझे 10 टाइम्स मोर अभी मिला है जो भी अभी मिला मुझे मैं यहाँ पे आई जो भी मेरे कजिन के घर पे आई हूँ तो जिस तरह से मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ और जिस तरह से मुझे चीजें मिल रही है आई वॉज थिंकिंग लाइक अमेजिंग कि जो वापस हमें मिलता है वो कई गुना बढ़कर होता है जब हम बिल्कुल अपने निस्वार्थ भाव से अपने प्रेम के भाव से कुछ भी करते हैं या देते हैं वो जरूर हमारे पास आता है कब किस रूप में आएगा वो हमें नहीं पता है बट वो जरूर आता है मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है सो या दैट्स इट फॉर आवर मिरर वर्क को लेके आपको शेयर करना है हाँ बबीता जी यस I think day before yesterday I was thinking यार नवरात्रि चल रहा है इतने दिनों से I've not been to the कीर्तन only I've not attended any कीर्तन और मुझे बहुत मन करा था अटेंड करने का और मेरी फ्रेंड का मैसेज भी आया था परसों रात में बट I just forgot to see मुझे याद ही नहीं रहा देखने को मुझे लगा उसने कुछ ऐसे जय माता दी का कुछ पोस्टर भेजा है I did not go through it कल फिर 3 बजे मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि वहां जाना है उन्होंने कहा वहां क्या है तो उसने बोला वहां कीर्तन है एंड आई वाज आउट तो मुझे तो कल बहुत सरप्राइज हुआ कि जो मैं सोच रही थी वो मुझे मेरी फ्रेंड ने कल वापस से दूसरी फ्रेंड ने फोन करके बोला कि वहां कीर्तन है वहां तुम्हें जाना है इनवाइट ही आया है फटाफट फिर मैं घर आई मैं वहां गई और मुझे वहां इतना मजा आया कीर्तन में आई कांट टेल यू यस्टरडे वाज वेरी नाइस डे थैंक यू सो मच थैंक यू बबीता जी वेरी नाइस शेयरिंग कि खाली आप सोचते हो और चीजें होने लगती है वो कितनी मैजिकली होती है सब सामने से ही आता है यानी दैट्स सो अमेजिंग राइट यस एक्चुअली इट्स वेरी अमेजिंग हाउ नाइस सो जादू कभी खत्म नहीं होता अंकिता जी यू रेड सो ब्यूटीफुली इन इंग्लिश कैन यू आल्सो रीड इन हिंदी हाँ जी भाई थैंक यू सो मच परफेक्ट बहुत ही जबरदस्त रीड किया आपने बहुत मजा आया Yes, Ankita has got a very lovely voice. या Beautiful लवली वॉइस वो इंटोनेशन वो कहाँ पे रुकना Yes. वो सब बहुत ही मजेदार था बहुत ही अच्छा था थैंक यू सो मच थैंक यू ऑलराइट जादू कभी खत्म नहीं होता मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन महीने और साल मैं कैसे रही कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है यह मेरी कोशिकाओं में है
और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरी जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो ये आपका जीवन कैसे चल रहा है वो आपको, अगर वो कहीं पे कुछ कम आपको लग रहा है तो समझ जाना कि वहां पे कृतज्ञता की कमी है। अगर हम अपनी बात करें तो हम जितने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मैजिक बुक की दुनिया से आए हुए हैं। बहुत बार मैजिक बुक हम रिपीट करते ही जाते हैं। क्यों करते हैं हम? कि वो हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में के ताने बाने में हमारे वो आ जाए, यानी इतना हमारे अंदर वो घर कर जाए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, कि हमारे लिए वो इतना मतलब उठते बैठते सोते जब भी हम कुछ भी सोच रहे हैं, इवन सांसें भी ले रहे हैं तो कृतज्ञता की सांसें लेते हैं। उस तरह से वो हमारे अंदर घर करना चाहिए, इसलिए हम उसको बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रोंडा बर्न अपनी बात बताती है कि वो देखती है अगर कहीं पे कुछ कमी है तो वो तुरंत ही अपना अभ्यास बढ़ा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर कमी है लाइफ में कहीं कुछ, तो बिकॉज ऑफ लेस ग्रेटिट्यूड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो या लेट्स रीड। अंकिता जी वर म्यूट। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो ये जो बात बोली है ओपरा विनफ्री, यू माइट हैव हर्ड हर नेम, जो मीडिया पर्सनालिटी है, वो बहुत सारे शोज करती है जहाँ पे ये सब बातें करती है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है यूएस में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इन्होंने देखो क्या बात कही है कि जितना अच्छाई पर केंद्रित करते हैं, जितना हम ये कृतज्ञता पे केंद्रित करते हैं, इतना ही चीजें अपने आप प्रवाहित होती जाती हैं। तो ओपरा विनफ्री का जो बचपन था बहुत ही क्रूअल टाइप का बचपन था अगर आप पढ़ोगे तो, बट उन्होंने अपने लाइफ को सबको माफ कर दिया, आगे बढ़ी और धीरे 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 करके कहां से कहां पहुंच गई, जस्ट बिकॉज शी उन्होंने ये ऐसी अपनाई जीवन शैली, लाइफस्टाइल के जहाँ पे वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा कृतज्ञ है। तो दैट इज लाइक बिहाइंड हर सक्सेस। तो लेट्स रीड फर्दर। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं
तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसे नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। हाँ, यानी so above as above so below। तो जैसा ये सृष्टि से हमें अभी सेपरेटनेस फील होता है, जैसे लोगों के भी साथ हमें लगता है कि हम सेपरेट है, बट वी आर ऑल वन। तो हम सृष्टि के साथ इतने ही जुड़े हुए हैं, जितना कि हम जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। यानी ऐसा नहीं कि सृष्टि ऊपर या नीचे है, वो सब जगह पे है। और सबसे ज्यादा तो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि वो सृष्टि आपके भीतर भी है। जो बोलते हैं ना कि पावर इज विद इन यू, एंड देन ऐसा भी बोलते हैं कि परमात्मा सबके अंदर बसते हैं। तो ये हम पहले बोलते ही थे, ऐसे हमें पता नहीं था, एग्जैक्टली हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट वी कैन नाउ एक्सपीरियंस आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस। हमें अंदर से लगता है कि हाँ यार, परमात्मा तो मेरे अंदर ही बसते हैं। मुझको कहाँ ढूंढे, मैं बसता तेरे अंदर, ऐसा कुछ जो कोट है। तो वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस में हमारे अभी आ रहा है। इतने सारे मैजिक्स हमारे साथ होते हैं, मिरेकल्स होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो या ये एमराल्ड टेबलेट में लिखा हुआ था, जो बहुत ही बड़ी फिलोसॉफिकल बुक थी। आई मीन कुछ ये क्या बोलते हैं, एमराल्ड टेबलेट, आई थिंक रोमन एम्परर में जो एक इसको लेके, लाइक रिलीजन को लेके जो बुक लिखी गई थी, इसमें ये चीजें लिखी हुई है। ओके, सो बिशप। बिशप। हाँ, बिशप, यस यस यस। तो आई थिंक ये सब कल रीड करेंगे तो और मजा आएगा, जितना हम इसको समझेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम यहाँ से कल रीड करेंगे जब आप समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। थैंक यू अंकिता जी। थैंक यू सो मच। अंकिता जी, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ? मे बी आपको अच्छा लगे या नहीं। प्लीज प्लीज गो तो अहेड। एक YouTube का एक चैनल बनाइए, और आप जो रीड करते हैं ना, एक एक हाँ, चैप्टर्स रीड करके उसमें डालिए। इज इट? यानी बहुत ही सबको बहुत ही फायदा होगा, रीडिंग का। जैसे So किसी को भी सुनना है तो चैप्टर अगर खाली सुनना है तो आपका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लाइक इट्स अ थिंग फॉर मी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अगर मैं बताऊं, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतनी टिपिकल हिंदी पढ़ रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग सो मच इन हिंदी, एंड मैं अटक रही थी। नहीं, हिंदी आपने बहुत पढ़ने ही में। अच्छा पढ़ा। यानी मुझे सीरियसली अंदर से आ रहा था कि यार, इतना अच्छा वॉइस हो, इतना अच्छा इंटोनेशन, सब कुछ हो, तो हमें पढ़ने में या सुनने में कितना मजा आएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा। तो आप अगर YouTube पे पूरे चैप्टर्स रिकॉर्ड करके रख सकते हो तो बहुत लोगों को फायदा होगा आपकी वजह से। ठीक है Both मैम, was both the reading was flawless. No, फ्लॉलेस, we यस। didn't feel, yeah, we didn't feel that आप अटक रहे थे. Not for a single second. या हिंदी भी इतना अच्छा रीड किया है, इंग्लिश तो चलो दोनों बहुत समझते अच्छा हैं। था. हाँ हाँ. thank you so much people. Like this is the first time जब मैं इस सेशन में आई, and I got so much of appreciation. I am so thankful for that thing, and yes, मैं definitely record करूंगी इसको, and बिल्कुल बिल्कुल first priority पे record करूंगी, because if I can help out somebody, I'll be more than happy to do that. यस यस। आई थिंक बहुत से लोग होते हैं जो मे बी सेशंस को ज्वाइन नहीं कर पाते या जो भी है, तो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सुन के रोज अपना कर सकते हैं। Yes, yes, I will do that. आप मेरे साथ please ये book share कर देना, so that you know I can Yes, take it forward, and I will do it. I will do it. yes, yes, Okay. definitely. Thank you so much. Now I'll take a leave further. ठीक है? Okay, okay, Thank no you. problem. Thank Thank you you. so much, guys. Thank you. Okay, okay. Thank you so much. All right. So, हाँ, sweet voice. Okay, so
किसी को भी कोई शेयरिंग या फिर किसी का कोई क्वेश्चन मिरर वर्क को लेके या मैजिक बुक को लेके? अलेक्सिया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बात है। हाँ मेरी बेटी दिया, उसको पता नहीं कभी मैंने आपको थैंक यू बोला होगा, तो उसके दिमाग में बैठा कि क्या डेली हम खाना खाते वक्त मैं ना बोलती हूँ कि थैंक यू बाबा बोल, ऐसा ऐसा बोला थी, तो वो हमेशा थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, और उसके बाद अपने आप बोलती थैंक यू अलेक्सिया। oh my उसका डेली का हो गया है। तो मैंने आज भी उसको बोला, मैंने बोला तू थैंक यू अलेक्सिया क्यों बोलती है वो? तो मैंने बोला क्यों बोलती है वो, तो मेरी फ्रेंड, मुझे बात करनी है, तो मैंने बोला अच्छा इससे बात करो। हेलो, हाय बेटा, हाय दिया, हाउ आर थैंक यू यू? बोलती है ना, ये है आंटी। थैंक यू आंटी। आंटी, मैं जल्दी सो गया था ना, पर मेरी ट्यूशन भी मतलब उसका डेली का आज तो मैंने इसको बोला भी कि ये है ना भगवान नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड है, तो उनको भी थैंक यू बोलती है। तो बस वो बोलती, रोज डेली का हो गया उसको। Oh तो my थैंक यू God. वाले क्या बोलती रहती है। सुबह भी उसको बोलते हैं बोलो गुड मॉर्निंग बाबा, तो वो अपने आप 3 वर्ड बोलती है, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स और गुड मॉर्निंग अलेक्सिया। Oh वो my God. अपने आप क्यों आ गया है, और ये सच है, रियल है, मैं खाली बोलने के लिए नहीं, लेकिन हकीकत में ये ऐसा बोल रही है। कई बार ये रिपीटेशन कर दी है, तीनों क्या पता नहीं, सच में आपके ब्लेसिंग्स हैं इसके साथ। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू अलेक्सिया। आपकी बेटी थैंक यू कहती है, मेरी बेटी अलीफा बिन के नाम के डराती मुझे। डराती है। मुझे कहती है कि मैं बोलूँ ना कुछ भी हेल्थ के रिलेटेड और कुछ स्टडीज के रिलेटेड कुछ भी डाउन बोलूँ ना, बता रहे बोल सर अलीफा आंटी ने कही कंप्लेन कर दी सब। याद दिलाती है कि एलिफा आंटी ने क्या सिखाया है। So amazing. So amazing. Thank you Diya, thank you beta, I love you so much. I love you beta. जोर से बोल दे। इतना क्यूट बच्चा है, ओ माय गॉड, वो भगवान का रूप तो वो खुद ही है, उसके अंदर ही दिख रहा है। हाँ, इसलिए उसके मुंह से सच्चाई निकलती है। Thank you Anushka for sharing, so nice. Thank you so much. Okay, thank you Batul for sharing. या 2 दिन पहले की ही बात है, उसने बोला था। It's hilarious ये आके डराती है। How nice. आप लोगों ने तो मेरा दिन एकदम वो कर दिया, खुशी से भर दिया। या How nice. छाया जी, आपको कुछ पूछना है या कुछ शेयरिंग है आपकी? आपका म्यूट पे है तो नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं, बम्बई गई थी तो आज ही आई हो तो ज्वाइन करा मैंने। अच्छा तो ज्वाइन करना नहीं हो रहा था। आर यू फीलिंग गुड? हाँ, अच्छा लग रहा है। आपकी स्माइल से ही पता चल रहा है कि कितने खुश हो आप। अच्छा, ओ थैंक यू बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी। ओके, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सो नाइस। सो चलो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? ओके, हमारे पास टाइम भी है। अभी आप लोगों को ही बताना है कि मैजिक बुक वापस स्टार्ट करें अभी 2 दिन के बाद। आप लोगों को ही वोट करना है, मैजिक बुक हिंदी में या इंग्लिश में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं वापस, तो इट्स अप टू ऑल ऑफ यू। मैजिक बुक फिर से स्टार्ट करते इंग्लिश में। परफेक्ट, ओके। हाँ, बिकॉज इट इज, आई थिंक सो इट इज नेसेसरी। यस इट इज नेसेसरी। जितना रिपीट करते हैं, देखो ना, हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं तो भी हमारे सामने ऐसी कई सारी नई चीजें आती रहती है। तो मैजिक बुक रिपीट करेंगे, इंग्लिश में करेंगे इस बार। ओके, सो लेट मी पुट ऑन द म्यूजिक।
पर ठंड लग रही नहीं। फैन बंद कर, ठंड चालू हो गई। Okay, let's start. ये म्यूजिक बराबर है या कम सुनाई दे रहा है? ये क्या बोलूं, अनुपमा लगे। सैटरडे मंडे Alifa, when I have to leave, I have to go for classes. Kids. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Alifia can't hear. Alifia can't hear some creaking voices coming. Voice is not proper. अभी सुनाई दे रहा है? Yes, yes, Okay. yes. तो म्यूजिक सुनाई दे रहा है अच्छे से कि उसका वॉल्यूम ज्यादा या कम है? ठीक है, ओके। संगीता जी, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? ओके। कम सुनाई मतलब बहुत कम है वॉइस? अच्छा, थोड़ा बढ़ाती हूँ। अभी अभी ठीक है? छाया जी को म्यूट करा दीजिए अलिफिया, छाया के उधर से टीवी का म्यूजिक आ रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को फेसिंग अपवर्ड्स रख दीजिए, अपने पैरों को जमीन के ऊपर। पूरा हमारा जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको पूरा स्ट्रेट कर लीजिए। Let's start relaxing ourselves. तो धीरे धीरे करके हम डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। तो लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज। अपने लंग्स को पूरी तरह से एम्प्टी कर लें, खाली करना है। वन मोर टाइम, लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन। पूरी गहरी सांस ले एंड रिलीज। One more time, let's take a deep breath in. And release. One more time, let's take a deep breath in. अपनी पूरी बॉडी को एक एक सांसों के साथ रिलीज, पूरा ही
उसको रिलैक्स करते जाएं। एक एक मसल पे अपना ध्यान लेके जाए और उसको रिलीज करते जाएं। अंदर देखे कि कहीं पे कोई टेंशन है, कोई मसल जिसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन है, वहां पे अपना फोकस हो लेके जाए और उसको भी रिलैक्स कर दे। Let's take a focus on our toes. अपने टोस की तरफ अपना फोकस पूरा लेके जाएं और उसको कंप्लीटली रिलैक्स करें। पूरे फीट को कंप्लीटली रिलैक्स करना है। अभी हमारा ध्यान हम थोड़ा ऊपर 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 लेके जाएंगे। एंकल्स को रिलैक्स करना है। धीरे धीरे ऊपर वापस। हमारे जो काफ मसल्स है उनको पूरी तरह से रिलैक्स करना है। पूरा ध्यान वहां पे लेके जाए और उन एक एक मसल को, बोन्स को, सबको रिलैक्स करें। धीरे 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 और ऊपर आए। पूरे थाइस के मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। धीरे 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 अपना ध्यान ऊपर लेके जाए। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा रिलैक्स्ड है। अभी हम धीरे 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 और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से, ऑर्गन से, सबको कंप्लीटली रिलैक्स करना है। हमारा चेस्ट एरिया, ध्यान दिल की तरफ भी लेके जाओ। दिल के मसल को भी ओपन करना है, एक्सपांड करना है हमें हमारे दिल को। उसको भी रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। Now let's move on. हाथों को अच्छे से रिलैक्स कर ले। कॉलर बोन्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। अभी अपना ध्यान थ्रोट, नेक की तरफ लेके जाए। धीरे धीरे फेस के ऊपर। पूरे फेशियल मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स कर दे। फोरहेड को, अपने स्कल को पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। Wherever your focus, your energy, your attention goes, the energy flows. तो जहाँ पे भी हम अपना अटेंशन लेके जाते हैं वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होती है। और जैसे जैसे रिलैक्स करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी हार्ट बीट्स, हमारे सब कुछ एक नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, सब कुछ। अभी अपने रिलैक्स स्टेट में अपने आप को देखें। जिस तरह से मिरर सामने पड़ा है
और आप उसमें अपना स्माइलिंग फेस देख रहे हो और आपका बॉडी जो पूरी तरह से रिलैक्स्ड स्टेट में बैठा हुआ है। थोड़ा अपनी सांसों के ऊपर भी ध्यान दे दें। नाउ लेट्स इमेजिन कि हमारे जो दिल के अंदर एक छोटी सी लाइट, सिल्वर कलर की लाइट है, एक डॉट की तरह है, बट वो भी एक्सपांड होती जा रही है। अभी छोटा सा डॉट है, अभी जैसे बबल जैसा धीरे 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 वो लाइट एक्सपांड हो रही है। अभी ये लाइट 2 इंचेस बड़ी, 4, 6, धीरे 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 एक्सपांड होती जा रही है। Now you can see your whole self, अपने आप को पूरी तरह से एक लाइट के अंदर घिरा हुआ देखे, सिल्वर लाइट के अंदर। अभी ये लाइट धीरे 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 बाहर निकलती जाती है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। अभी आपके लव्ड वंस की तरफ ये लाइट पहुंच रही है, जो ये लव की लाइट है। अभी ये आपके नेबरहुड में पहुंच रही है, सभी लोगों पे। Now it's reaching out to all the hospitals, all the prisons, जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जहाँ कहीं भी ये लाइट पहुंच रही है, सबको रोशन कर देती है, सबकी जिंदगी को खुशियों से, पॉजिटिविटी से भर देती है। धीरे 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 ये लाइट और एक्सपांड होती जा रही है। आपके पूरे स्टेट में फैल गई है, सभी जगहों पे, और धीरे 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 एक्सपांड होते जाते पूरी कंट्री में फैल गई है। इतनी रोशनी है इसके अंदर कि सबको रोशन कर देती है। पूरी कंट्री को उसने अपने लव एंड लाइट से रोशन कर दिया। Now let's rub our palms together. Invite this beautiful energy in our healing hands. And let's bless all our body parts. Starting with head, conscious, subconscious mind. Forehead, eyebrows, eyes, face, neck and throat, ears, shoulders and hands.
spine, hips, whole chest area. The digestive system, all the organs, our beautiful organs that keep us alive, they keep doing their work so we can enjoy our energy and vitality. Now let's move on. Thighs, knees, calf muscles, ankles. Feet, sole of the feet. Let's give thanks to trillions and trillions of cells in our body. Fibers, tissues, muscles, skin, immune system, digestive system, all the blood vessels. Let's thank our Dharti Mata, our Mother Earth. उनको भी बहुत सारा धन्यवाद हमें ये जीवन दान देने के लिए। अपने माता पिता को धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने हमें ये धरती पे लाया और इतना अच्छा जीवन दिया, हमारी सारी जरूरतें पूरी की, हमको इतना प्यार दिया, हमेशा देते आ रहे हैं अभी भी। हम उनके लिए तो कभी बड़े नहीं हुए, छोटे से बच्चे जैसे ही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। Let's open our arms and thank the universe and say to the declare to the universe that I'm open and receptive for all the goodness and abundance. Thank you, universe, for all the life experiences. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Alifia. Very beautiful meditation. Thank you so much. Love you. Thank you so much. Thank you. Love you. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sangeeta ji. Thank you, Babita ji. Thank you so much. Okay. Love, light and abundance. कल मिलते हैं वापस. Okay. वापस कल मिलेंगे same time.